नमस्कार दोस्तों सूर्योदय कहाँ से हुआ था? ये मैं सवाल क्यों पूछ रहा हूँ आप जानते हैं? आज जो मोदी जी का पीएम मोदी जी का खास और सबसे चाटुकार पत्रकार है ना सुधीर चौधरी जी, उन्होंने क्या पता कहाँ से आज फैक्ट चेक कर दिया। वही पीएम मोदी को बयान के लेकर पीएम मोदी ने जो मुसलमानों पे बयान दिया था ना कि मुसलमानों को सारी संपत्ति कांग्रेस बांट देगी, खुद मनमोहन सिंह जी ने कहा था, उसे फैक्ट चेक किया आज सुधीर चौधरी जी ने और उन्होंने साफ साफ कहा ये पीएम मोदी जी का बयान गलत है, मनमोहन सिंह ने ऐसा कभी कहा ही नहीं है। वही मैं सोच रहा सूर्योदय कहाँ से हो गया। अब ये देखकर मुझे आश्चर्यचकित हो गया, सुधीर चौधरी जी की कहां सा जुनून जाग गया कि वो पीएम मोदी के खिलाफ बोलने लगे। अरे सच तो है, आज तक कभी भी पीएम मोदी के खिलाफ सुधीर चौधरी जी नहीं बोले थे, पर आज धीरे धीरे आज तक के पत्रकारों की ना ये कहां से जागरूकता आने लगी है कि वो पीएम मोदी से सवाल अब पूछने लगे हैं। और खास करके आज तक के पिछले पत्रकार ने ईडी सीबीआई से लेकर सवाल पूछा था और आज सुधीर चौधरी जी ने फैक्ट चेक कर दिया। ये तो हैरानी की बात है ही हैरानी की बात। ईडी सीबीआई का नाम आ गया तो ईडी सीबीआई के नाम पे मैं आपको एक बात बता देता हूँ। अभी लद्दाख में जो प्रोटेस्ट चल रहा है, सोनम वांगचुक जी का प्रोटेस्ट चल रहा, वहां पर अब ईडी ने सोनम वांगचुक जी को लेटर भेज दिया है। हैरान हुए ना? जी हाँ, ईडी ने सोनम वांगचुक जी को ना लेटर भेज दिया है और लेटर में उन पर शिकायत दर्ज कराई गई है। Good morning world, Jule greetings from Ladakh in the Indian Himalayas where thousands of people have been sitting on climate fast. It's the 46th day today. In the beginning I sat for 21 days of hunger with water and salt, and then it was followed by women 10 days, youth 10 days, and now monks from monasteries of Ladakh. We are all trying to remind the government of India, especially the Home Ministry, of the promises they made to these fragile ecosystems of Ladakh and the indigenous people's cultures to safeguard them under the 6th schedule of Indian Constitution. This was a promise made by the government and top agenda on their manifesto in last two elections, which were won based on these. And after that, they backtracked and never kept the promise. And now, at the end of their tenure, we are having to do this fast to remind them. And we hope they will keep their promise. In today's update, I'm going to share with you a very strange and interesting incident that happened yesterday. For the longest time, I was not sure if I should share with you all, my friends and supporters, or not. Finally, I'm thinking I should share. So yesterday, a man came to me and handed over this envelope. This envelope had nothing written on it. It was stapled and packed very well. I opened it and found this letter, which was an anonymous letter, and says, I'll read you. Sir, the only purpose of this letter is to inform you, in case you aren't aware, that the bank account details for your institute has been taken by the Anti-Money Laundering Department recently from the banks. The same has happened in Mr. Kejriwal's case, in brackets. This wasn't supposed to be disclosed to you or anybody for that matter, but I felt the need and importance for you to know if at all you can do something before it's too late. Wishes and prayers, an admirer. So something interesting seems to be cooking up around me. This letter was given to this man by somebody outside the park who just said, please give it to Sonam Wangchuk, and left. So we don't know who this has come from, but to me it looks like it comes from the staff of either a bank or an investigating agency. The thing is that these days... सुनिए दोस्तों, सोनम वांगचुक जी ने कहा ईडी का लेटर आ गया है। अब वो भी ईडी के दामाद बनने वाले हैं सोनम वांगचुक जी। अब ईडी अब उन पर भी छापा मारने वाली है। ये हद हो गई है दोस्तों। जो बीजेपी का साथ दे उसे ईडी सीबीआई कुछ नहीं करेगा, जो बीजेपी का अगेंस्ट है उन पर ईडी सीबीआई की जांच पक्का होना तय है। सबसे स्पेशली इलेक्शन 2024 में सबसे अगर बेशर्म बना हुआ है ना, सबसे बेशर्म इंसान जो बना हुआ है वो चुनाव आयोग बना हुआ है। सबसे बेशर्म वही बना हुआ है। अगर यही विपक्ष पार्टियां किसी धार्मिक मुद्दे को लेकर अगर चुनाव में काम करती ना, चुनाव का प्रचार करती ना, तो उसमें खुद इलेक्शन कमीशन ना उस पर फट से ना कार्रवाई करता। लेकिन यहाँ पे मोदी जी, बीजेपी के सारे नेता सिर्फ धर्म के लेकर वोट मांग रहे हैं और साफ ना कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया धर्म के लेकर वोट नहीं माना गया।
चाहिए। पर इसमें जब विपक्षी पार्टियों ने चुनाव आयोग को नोटिस दिया तो चुनाव आयोग ने साफ साफ इनकार कर दिया और बोला कि हम उन पर कार्रवाई नहीं कर सकते। अब आप सोच सकते हैं, ये चुनाव आयोग ना पूरी तरह से ना बीजेपी को सपोर्ट करने में लगा है और बीजेपी को जीत दिलाने में लगा है।